بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو، اور میں ہوں محمد کبیر۔ حروب کیا ہے؟ حروب سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ حروب لگا ہے یا نہیں؟ اگر حروب لگ گیا ہے تو حروب کو کینسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حروب کی سزا کیا ہے؟ حروب پر جرمانہ کیا ہے؟ ساری تفصیل آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو بہت محنت کی گئی ہے اس ویڈیو پر۔ اگر ویڈیو آخر میں آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے تو آپ کمنٹ میں لکھیے گا، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ تو سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل سعودی انفو پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ سعودی عرب میں نومبر 2019 میں حروب کے بارے میں ایک نیا قانون پاس ہوا ہے، جس میں کچھ سختیاں کی گئی ہیں اور مختلف قسم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں وزارت محنت کے قانون کے مطابق کام سے فرار یعنی بھاگ جانے والے کارکن کو ملازمت دینے والے سخت سزا کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو ملازمت دے دی، آپ کا حروب لگا ہوا ہے، تو صرف حروب جس کا لگا ہے اسے سزا نہیں ہوتی، بلکہ حروب کو کام دینے والا، حروب کو رہائش دینے والا اور حروب والے کو کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے والا بھی سزا کا مستحق پاتا ہے۔ ایسے کارکنوں کو جن کا حروب درج ہو، انہیں قید و جرمانے کے علاوہ مملکت کے لیے مستقل طور پر بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ تا حیات پوری زندگی کسی بھی ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے۔ جوازات کے مرکزی سسٹم میں حروب کو کفیل 15 دن کے اندر کینسل کرانے کا مجاز ہوتا ہے۔ مذکورہ مدت گزرنے کے بعد جس کا حروب لگایا گیا ہے، سسٹم میں اس کی فائل کو سیز کر دیا جاتا ہے۔ کفیل کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ 15 دن کے اندر اگر وہ حروب کینسل کروانا چاہتا ہے تو وہ حروب کینسل کروا سکتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ حروب لگانے کا پہلے مینول طریقہ تھا، جوازات سے حروب لگا کرتا تھا اور جوازات سے ہی کینسل ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی سسٹم اپ گریڈ کیا گیا ہے اور حروب آن لائن ہی لگایا جاتا ہے۔ کفیل اپنے ابشر کے ذریعے حروب لگا دیتا ہے، لیکن کینسل ابشر کے ذریعے نہیں کر سکتا، بلکہ کینسل کروانے کے لیے اسے جوازات جانا پڑتا ہے۔ 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ 15 دن کے اندر اگر کفیل حروب کینسل کروا دیتا ہے تو ٹھیک، اگر کینسل نہیں کرواتا 15 دن کے اندر تو 15 دن کے بعد کوئی بھی ایسا چانس نہیں ہے کہ آپ کا حروب کینسل ہو جائے۔ نہ تو آپ کا کفیل حروب کینسل کر سکتا ہے، نہ کوئی ایجنٹ، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ، کوئی بھی ایسا فارمولہ، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آپ کا حروب کینسل ہو جائے۔ کسی بھی قسم کے فراڈ میں، فریب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے لالچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 15 دن کے بعد آپ کا حروب کوئی بھی کینسل نہیں کر سکتا۔ ایسے کارکن جو قانون محنت کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، اپنے آجر یعنی کفیل کے پاس سے فرار ہو کر دوسری جگہ ملازمت کرتے ہیں، غیر قانونی کارکن کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ قانون محنت کے مطابق غیر قانونی تارکین کو ملازمت فراہم کرنے والے ادارے یا افراد کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ ایسے ادارے، فیکٹری یا شخص جس نے حروب والے کارکنوں کو ملازمت فراہم کی ہو، دوران تفتیش اس کے پکڑے جانے پر ادارے کے ڈائریکٹر، ادارے کے ذمہ دار شخص، ادارے کے کسی بھی آفیسر کو 1 لاکھ ریال جرمانہ اور 6 ماہ کی قید ہو سکتی ہے۔ ادارے کے ذمہ دار جس نے غیر قانونی افراد کو ملازمت فراہم کی ہو، اسے قید و جرمانے کے علاوہ مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا، جبکہ ادارے پر آئندہ 5 برس کے لیے ویزوں کا اجرا بھی بند ہو جائے گا۔ وہ ادارہ، ظاہر ہے ادارے سارے سعودی ہوتے ہیں، کمپنیاں ساری سعودی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی بندہ اس کمپنی کے اندر غیر ملکی ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی بڑا انجینئر ہے، کوئی بڑا عہدیدار ہے وہاں پر، اور وہ کسی کو کام پر رکھ لیتا ہے کفیل کی اجازت کے بغیر، یعنی کمپنی کے مالک کی اجازت کے بغیر یا کمپنی کے نوٹس کے بغیر اگر وہ رکھ لیتا ہے اور بندہ حروب والا پکڑا جاتا ہے، تو ذمہ دار وہ شخص ہوگا جس نے بندہ حروب والا اپنے پاس کام کے لیے رکھا۔ حروب والے کارکنوں پر سزا کا اطلاق تمام پیشوں پر کیا جائے گا، مثلا گھریلو ملازمین جن میں فیملی ڈرائیور، خادمہ، فیملی نرس، ہوم ٹیوٹر وغیرہ کے پیشے شامل ہیں۔ حروب والے کارکنوں کو محض مملکت سے ہمیشہ کے لیے بے دخل نہیں کیا جاتا، بلکہ ان پر 50,000 ریال جرمانہ اور 6 ماہ کی قید کی سزا بھی ہوتی ہے۔
जुर्माना अदा करने और कैद काटने के बाद इन कारकुनों को मुल्क बदर किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खबर चल रही है, बहुत ज़्यादा मुझे लोग आजकल हुरूब के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर हुरूब वाला पकड़ा जाता है या पकड़ा नहीं जाता, जितना टाइम वो सऊदी अरब के अंदर गुजारता है उसको डेली का 100 रियाल यानी रोज़ाना का 100 रियाल उसको जुर्माना होगा। लेकिन ऐसी खबर मुझे अभी तक कहीं भी नहीं मिली। हाँ, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अथेंटिक चीज़ है। 50,000 रियाल जुर्माना और 6 माह की कैद है। हुरूब से कैसे बचा जा सकता है? बहुत ही अहम सवाल है कि आप हुरूब से बच कैसे सकते हैं। हुरूब ऐसे गैर मुल्की कारकुनों के लिए होती है जो अपने आजिर के पास से फरार हो जाते हैं। कफील को मालूम नहीं होता कि उसके कारकुन कहाँ हैं। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके कफील आपका हुरूब गलत लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा केस ऐसे सामने आते हैं कि लोगों के अकामे एक्सपायर होने के करीब होते हैं, कफील को डर होता है कि वो अकामा बनाएगा और उसका ख़र्चा होगा तो वो हुरूब लगा देता है। किसी भी वजह से कफील के साथ आपका कोई झगड़ा हो जाता है तो कफील आपका हुरूब लगा देता है। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं हुरूब लगने की। सऊदी अरब में कानून के मेहनत के मुताबिक कफील या आजिर इसका ज़िम्मेदार है कि वो अपने ज़ेर कफ़ालत आने वाले गैर मुल्की कारकुनों के अकामे वर्क परमिट और क़यामत आम के अलावा दीगर ज़रूरत का ख्याल रखे। अब ये कफील पर है, तमाम ज़िम्मेदारियाँ, उसकी रिहाइश, उसकी खुराक और तमाम जितने भी उसके वर्क परमिट है, अकामा है या इसके अलावा जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कफील की ज़िम्मेदारी है कि वो पूरे करे। ऐसे गैर मुल्की कारकुन जो अरबी से वाकिफ़ नहीं होते और ऐसे एजेंट्स के हाथ लग जाते हैं, जो एजेंट्स सिर्फ पैसा कमाते हैं, उनका काम पैसा कमाना होता है, उनका ताल्लुक इंसानियत से नहीं होता, वो धोखाबाज होते हैं। तो ऐसे लोग जब सऊदी अरब में पहुंचते हैं तो अब उनको कफील ही नहीं मिलता। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कफील का पता ही नहीं चलता कि कफील कौन है। ज़्यादातर बड़ी कंपनियां हैं जिस तरह, उनके कफील तो आपको पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप किसी कंपनी के वीज़ा पर आए हैं और कफील से मिलने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो कंपनी के ज़िम्मेदारान होते हैं, जो कंपनी के बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपके तमाम मामलात तय करते हैं, आपके साथ जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो पूरी करते हैं। यहाँ पर सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, जो आपका खिताब अक़्द खिताब है, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, आपके पास महफूज होना चाहिए। जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है तो आपको अगर सऊदी अरब में पहुंचकर पता नहीं चलता कि आपका कफील कौन है, आपका अकामा कौन बनाएगा, सिस्टम क्या होगा, क्योंकि एजेंट्स तो लाकर छोड़ देते हैं, फिर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इस सूरत में आपको जितना जल्दी हो सके, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन से पहले पहले अपने मुल्क के सफारत खाने के साथ आपने रब्ता करना है। ये वहाँ पर वेलफेयर की कुछ तंजीमें होती हैं जो स्पेशल यही काम करती हैं। उनको जब आप आगाह करते हैं तो फिर वो अपना जो भी उनका इसका तरीक़ाकार होता है उस तरीके के ज़रिए आपका कफील ढूंढते हैं या आपका मसला हल करते हैं, आपकी उसमें मदद करते हैं। बहुत सारे वीज़े ऐसे होते हैं जैसे घरेलू ड्राइवर वगैरह या मज़रे में काम करने वाले लोग हैं, जब उनके मुआहदे के मुताबिक सऊदी अरब में पहुंचते हैं और उनको वो जो उनके साथ मुआहदा किया जाता है, ज़ुबानी कलामी उनके साथ मुआहदा किया जाता है, तो उनको वो सैलरीज नहीं मिलती, तो फिर उनका कफील के साथ झगड़ा हो जाता है या फिर वो खुद लोग भाग जाते हैं काम से। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है तो फिर आपके पास ये सबूत होता है, आप कफील के खिलाफ जा सकते हैं। कारकुन के गायब होने पर कफील उनका हुरूब लगा देता है, जिसके बाद उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब आपका हुरूब लग जाता है तो आपके पास 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन के अंदर अगर तो कफील आपका हुरूब कैंसिल कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो आप कफील की बातों में कभी भी मत आएं। अगर कफील कह रहा है आपसे कि हुरूब लगा दिया, मैं कैंसिल कर दूंगा, मैं कैंसिल कर दूंगा, इस धोखे में कभी भी मत रहे। जब आपका हुरूब लग गया तो उसके बाद आपको टाइम है 15 दिन के अंदर अंदर एक्शन लेना है। आपने मकतब अमल जाना है, आपने अपने मुल्क के सफारत खाने में जाना है और आपने साबित करना है कि आपका हुरूब गलत लगा है।
जिसके लिए सबसे अहम चीज़ आपके पास आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपके पास मौजूद होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आमतौर पर यह देखा गया है कि खुद साख्ता यानी आज़ाद वीज़े वाले जो लोग हैं, वो जो गैर मुल्की अफराद जब सऊदी अरब में पहुँचते हैं तो उनके कफ़ील के साथ इख्तलाफात हो जाते हैं और उनका कफ़ील इस वजह से उनका हुरूब लगा देता है। ऐसी सूरत में कारकुन को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने सफारत खाने के ज़रिए लेबर कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दे ताकि उसका हुरूब ना लगाया जा सके। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या हुरूब लगा है या नहीं। ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि उनका हुरूब लगा है या नहीं, मैं इससे पहले एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों से ये कह चुका हूँ, ये मैं बहुत ज़्यादा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से स्पेशल कि आप लोग अपने अबशर का अकाउंट बना लें। जिनके पास अबशर का अकाउंट नहीं है, लाजमन आप लोग अबशर का अकाउंट बनाएं। अबशर के बगैर सऊदी अरब में आपकी ज़िंदगी अधूरी है। एक आपका अकामा है और दूसरा आपका अबशर है। दो चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आपको मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिस आम लोग समझते हैं कि अकामा ही सब कुछ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अकामा नहीं, आपका अगर अबशर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आपका कोई भी मसला होता है, आपका अकामा एक्सपायर होने जा रहा होता है, आपका अकामा तजदीद होता है या फिर आपका हुरूब लग जाता है, आपका खुरूज लग जाता है, आपको फ़ौरन मैसेज आ जाता है, उस पर आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ ये मामला हुआ है। तो एक तो हुरूब का पता लगाने का ये तरीका है कि आपका हुरूब लगा है या नहीं। दूसरा, आपका हुरूब जो चेक करने का तरीका है उसकी एक डिटेल वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि आपका हुरूब लगा हुआ है या नहीं। एक बंदा 5 साल से 10 साल से सऊदी अरब में काम कर रहा है, अब वो रोज़ाना तो 15 दिन के बाद तो वो चेक कर नहीं सकता कि वो हुरूब उसका लगा है या नहीं लगा। लेकिन जब आपके इख्तलाफात चल रहे होते हैं कफ़ील के साथ या कोई इस किस्म के मामलात, आपको कुछ इशारा मिल रहा होता है, आपको कुछ शक होता है कि हो सकता है ऐसा हो, तो फिर ये वीडियो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि हुरूब चेक करने का तरीका क्या है, आप साथ साथ चेक कर सकते हैं। हुरूब लगने की सूरत में अगर 15 दिन के अंदर कैंसिल नहीं कराया जाएगा तो मामला दुश्वार हो सकता है, आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अगर हुरूब नाजायज़ तौर पर लगाया गया है तो कारकुन का हक है कि इसे चैलेंज करे, ताहम उसके लिए भी सफारत खाने का किरदार इंतहाई अहम होता है, जिसके ज़रिए कारकुन लेबर कोर्ट से रुजू कर सकता है। तो उम्मीद है हुरूब के बारे में बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल बाकी रह गया है तो आप कमेंट में सवाल कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।